Good afternoon again. We met again in this new fresh part. So, today we are going to continue our chapter The Eyes Have It from where we have leave it. So, I wanted to tell you all that I am going to give you exercises and question answers too of this lesson. I forgot to tell you before, and thank you for supporting me in my first part. Also, you support me in this also. So, we must start our part 2 without any wastage of time. I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. She gave a little exclamation and said, "I didn't know anyone else was here." You can underline the words from this paragraph. Startled and exclamation. Meaning of startled is shocked, and meaning of exclamation is the expression of shocking. Now I'll explain you this paragraph in Hindi. ऑथर कहना चाहता है कि शायद वो ट्रेन कंपार्टमेंट के किसी अंधेरे पार्ट में बैठा हुआ था, क्योंकि जो लड़की थी उसने उसको देखा नहीं, और जब उसने उससे क्वेश्चन पूछा तो लड़की थोड़ा सा चौंक गई, थोड़ी घबरा गई, और जब उसने उसको देखा तो उसने फिर उससे यह कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरे अलावा और भी कोई इस कंपार्टमेंट में है. सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज 2 लाइन्स. नाउ वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is in front of them. They have too much to take in, I suppose. Whereas people who cannot see or see very little have to take in only the essentials, whatever register tellingly on their remaining senses. Difficult words from this paragraph are essential, registers and tellingly. Meaning of essentials is ज़रूरी चीज़ें, important things. Meaning of registers is stores या notice. Meaning of tellingly is information. Now I'll move forward to explain this paragraph. Author wants to say that when people have something in excess, they don't care about it. They know that it is a very common thing for them. I'll explain in Hindi. जब लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ होती है तो वो लोग उस पर इतना नोटिस नहीं करते हैं, उनकी इतनी केयर नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं. हम देख सकते हैं कि पेड़ों का कलर ग्रीन होता है, और हम देख सकते हैं कि आसमान का कलर ब्लू होता है. लेकिन जो ब्लाइंड पर्सन है, जिनके पास सीइंग एबिलिटी नहीं है, जानते तो वो भी हैं कि पेड़ का कलर ग्रीन होता है और स्काई का कलर ब्लू होता है, लेकिन कौन सा ग्रीन कौन सा ब्लू वो नहीं जानते. दे डोंट नो अबाउट दैट. सो द ऑथर वांट्स टू टेल दिस ओनली इन दिस पैराग्राफ, एंड ही ऑल्सो सेज दिस दैट कि उन लोगों के पास जो सेंसेस होती हैं बची हुई, आइज़ को छोड़कर, क्योंकि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो देख नहीं पाते ऑब्वियसली, तो आइज़ को छोड़कर उनके पास जो रिमेनिंग 4 सेंसेस होते हैं वो उनका यूज़ कर अपने इमेजिनेशन के थ्रू इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ कैसी दिखती होगी, वो क्या होगा, या फिर किसी का चेहरा बनाना है या अपना वो टच करने के अकॉर्डिंग इमेजिन करते हैं. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन. I didn't see you either, I said, but I heard you coming in. तो अब यहाँ ऑथर कहता है कि मैंने भी तुम्हें नहीं देखा था, लेकिन मैंने तुम्हें अंदर आते हुए ज़रूर सुना था. ऑब्वियसली ऑथर अंधा है तो वो भला लड़की को देख भी कैसे पाएगा, लेकिन उसने अपने एक सेंस, हियरिंग सेंस से पता लगा लिया कि लड़की अंदर आई है. नेक्स्ट पैराग्राफ. I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was blind, provided I keep to my seat. I thought it shouldn't be too difficult. The girl said, "I am getting off at Saharanpur. My aunt is meeting me there." तो यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि जो ऑथर था
You can underline the difficult words of this paragraph: wandered, discovering, and I think these are enough. So the meaning of wandered is ध्यान रखा, to make sure. Discovering is पता लगाना, किसी चीज़ का पता लगाना. तो now I will explain this paragraph in हिंदी. जो ऑथर था उसने इस चीज़ का ध्यान रखा कि लड़की को ये पता ना चले कि वो अंधा है. ऑथर नहीं चाहता था कि लड़की को पता चले कि वो देख नहीं सकता, तो उसने सोचा कि वो अपनी सीट पर ही रहेगा. प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट मीन्स कि वो अपनी सीट पर ही रहे, वो अपनी सीट से उठकर ना जाए ताकि ये चीज़ उसके लिए ज़्यादा मुश्किल ना हो. तभी लड़की बोली कि मैं सहारनपुर पर उतर जाऊंगी, मेरी आंटी वहाँ पर मुझसे मिलने के लिए वेट कर रही होंगी, रुकेंगी, मेरे से मिलने आएंगी वो वहाँ पर, या उसे लेने पिक करने आएंगी. तो our first page is complete. Now we will move to the next page. The first line of our next page is, then I had better not get too familiar. I replied, ants are usually formidable creatures. Underline the difficult words from this para: familiar and formidable. Meaning of familiar is ज़्यादा to be more friendly. You can write more friendly. And formidable means usually to fear of, किसी से डरना, डरावने creatures usually, जो author कहना चाहता है. Author then he said to the girl that, फिर मुझे ज़्यादा तुमसे फ्रेंडली नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी जो आंट है, क्योंकि उसने लड़की ने बताया कि उसकी आंट उसको पिक करने आएंगी. तो इन द आईसाइट्स ऑफ द ऑथर जो आंट्स हैं वो एक डरावने क्रीचर्स हैं, ऐसा ऑथर का मानना है. तो देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन्स. वेयर आर यू गोइंग? शी आस्क्ड. टू देहरा एंड देन टू मसूरी. ओह हाउ लकी यू आर. आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी. आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर. Now I'll explain these lines. Where are you going? She asked. तुम कहाँ जा रहे हो? लड़की ने पूछा ऑथर से. To देहरा and then to मसूरी means कि वो पहले देहरादून जाएंगे, उसके बाद वो मसूरी जाएंगे. लड़की बोलती है, ओह तुम कितने लकी हो, मुझे भी मसूरी जाना है, मुझे हिल्स पसंद हैं स्पेशली अक्टूबर में. मतलब कि यहाँ लड़की अपने फीलिंग्स या अपने एक्सप्रेशंस को ऑथर को बताती है कि उसको मसूरी जाना चाहती है, वो मसूरी जाना चाहती है क्योंकि मसूरी एक हिल स्टेशन है, वहाँ पर हिल्स रहती हैं, बहुत सारी हिल्स. तो लड़की को हिल्स पसंद है और अक्टूबर लड़की के हिसाब से जो अक्टूबर है वो एक अच्छा समय है मसूरी घूमने का. नेक्स्ट पैरा. येस दिस इज़ द बेस्ट टाइम आई सेड, calling on my memories. The hills are covered with wild dahlias. The sun is delicious, and at night you can sit in front of a log fire and drink coffee. Most of the tourists have gone, and the roads are quiet and almost deserted. Yes, October is the best time. तो जो ऑथर है वो इस पैराग्राफ में लड़की को मसूरी का एक शॉर्ट समरी टाइप का देता है, मसूरी के बारे में बताते हुए कि हाँ जो अक्टूबर है वो सही समय है. कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज मीन्स हमें यहाँ ये पता चलता है कि शायद से जो ऑथर है वो पहले भी मसूरी जा चुका है, उसकी जो मेमोरीज़ हैं उसके हिसाब से जो वो लड़की को बता रहा है, मतलब कि शायद वो पहले भी मसूरी जा चुका है. The hills are covered with white dahlias. You can write the meaning of dahlias. Dahlias is the kind of flower that is grown in on hills. तो जो hills होती हैं, hills I think and I hope that you all know the meaning of hills, so I don't think that I have to give the meaning. The hills are covered with wild dahlias means जो छोटे टीले या पहाड़ियाँ कह सकते हो आप, वो दहालियास यानी उन जंगली दहालियास फूल होते हैं एक तरह के, उससे कवर्ड रहती हैं. और जो सन है वो डिलीशियस होता है. यहाँ डिलीशियस यू कैन अंडरलाइन, यहाँ टेस्टी वाले डिलीशियस नहीं है. हियर इन द चैप्टर मीन्स
Delicious means the sun is pleasant. You can write the meaning pleasant. And at the night you can sit in front of a log fire and drink coffee means, और रात के समय तुम एक लॉग फायर मीन्स बॉन फायर के पास बैठकर कॉफ़ी पी सकते हो। बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं उनको मसूरी जाना पसंद है और वो जा चुके हैं, और जो रोड्स हैं वो क्वाइट होती हैं, मतलब शांति वाली जगह है वो। हाँ, और उसके ऑथर के हिसाब से भी अक्टूबर एक अच्छा समय है वहाँ जाने का। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस पार्ट हेयर ओनली. We will continue in our next part. Thank you.